হবে, দেখা যাবে। সাফারির মধ্যে থাকবে তুমি হ্যান্ডেলে করবো ওপেন জিপে। হ্যাঁ 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 আমরা চলে গিয়েছিলাম রুদ্রাক্ষের গাছ দেখতে। তার সাথে হরিদ্বারে অনেক মন্দির আছে, সেই মন্দিরের মধ্যেই একটিতে। এটা রুদ্রাক্ষের ফল। এটা আরো বড় হয়, আর বড় হয়ে শুকিয়ে বার করা হয় এটা। সতী মায়ের এটা জন্মস্থান। যা না যা, পাখির দিকে পড়ে আছে। তুই নাস্তিক নয়, তুই ঈশ্বর মানিস, যা না। তুমি যাবে না? কেন যাবো না? ছবি তুলো, আগে নিজে একটু ঠাকুরটাকে দর্শন করো ভালো করে। আমি কিনে দেবো কোন বাড়ি গিয়ে চড়াতে যাবো। এটা হচ্ছে মা শীতলার মন্দির।
रुद्राक्ष मंदिर। মেয়েগুলোকে তো ছেঙে আনতে হবে। হ্যাঁ তা ঠিক। তাহলে আমাকে বলে আর কি বলছেন, বেটা ছেলে আমি ঠিক চলে এসো, মেয়েরাই তো দেরি করছে, দেরি করছে। তাহলে না এ রাগ করবে না মন্দিরে ঢুকে। পার্বতী দশাবতারের মন্দির। মহামায়া 10 অবতার হয়েছিল। কইছে রোমা কোন রোমা কোন দিকে সেটাই রয়ে গেছে রোমা। রোমা কোন দিকে গেল? রোমা সেদিকে রয়ে গেছে। আই এই দিক থেকে আসতে বল। রোমা কোন? এই দিক থেকে তো বজরং বলি। ভালো করে দেখো, যারা যারা নতুন এসছো ছেড়ে গেলে বাদ তোমাদের হবে। আল্লাহ ভালো করে দেখো। ওইদিকে যাবো। माता रानी। বাইরে খুলে সত্যি করে অটো অটো যা ভাঙা পড়ে আছে। চন্ডী পাহাড় যাওয়ার রোপওয়ে। যদি একদম ভাঙা অটো তো পুরো পড়ে রাখবে। এরকম বলে। এরকম তো ওদিকে যাবে।
আমার নেই। চণ্ডী পাহাড়ের মনসাদেবী পাহাড়ের টিকিট একসাথে কাটা হয়, দুটোই রোপওয়ের টিকিটটা একসাথে কাটা হয়। কারণ আমি বাধা দেবো না। তো এখানেই ওই ওপরে পাহাড়ের ওপরে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে চণ্ডী মন্দির। নিচ থেকে রোপওয়ে করে ওই ওপরে ওঠা হয়। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। ওরা না গেলে আমাকে বাধা দিবি না, ঠিক আছে? মানে কিছু কিছু জায়গায় মনে করতে তুই যেতে পারলি না, কিন্তু সেটা যে আমি হতে পারে, বলেছিলাম না, সেটা তো আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এইটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। আরে তখন তো আগে তো করলাম, যাওয়ার সময় তো গেলাম, টিকিটও কাটালাম। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুলে দিচ্ছি 1 সেকেন্ড। কত সুন্দর লাগছে বলতো পুরো এটাকে। ডাকলো তো, ওরা কি গেল? ওই তো এই গাড়ি আমার বউ ওই ছবি এটা গোশালা চণ্ডী মন্দিরের কাছেই আছে। এটাও একটা মন্দির। আর মহাদেবের পার্বতী মায়ের নাম।
একবার দেখো মানে ওইখানে যে যে মায়ের মুখটা পার্বতী মায়ের মুখটা একবার না আমি এরকম ঠিক আছে আমি একটু ভিডিও করে আছি দাও তো দাও দাও জল দেওয়ার পর ওটাকে ঝাঁট দিচ্ছে, জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়ার পর। हम एक गाना आपको भेज रहे हैं, क्विक शेयर ऑन कीजिए। आपका क्विक शेयर ऑन कीजिए, एक गाना भेज रहे हैं हम। नाम नहीं हमें ঋষিকেশে চলে এসেছি, ঋষিকেশের মন্দিরে। ওই অ্যালাউ নেই, ভেতরে এলাও নেই, বাইরে আছে। এটা একটা নারায়ণ মন্দির, তার সাথে আশ্রমও আছে আর মিউজিয়ামও আছে, কিন্তু এখানে ক্যামেরা অ্যালাউ ছিল না। বাইরেটা ছিল, যতটা পারা গেছে ভিডিও করেছি। মিউজিয়াম দাঁড়া, আমি কোথায় রাখবো এখানে ওই হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়া দাঁড়া রাখুন। সেটুকু দরকার সেটুকু দিতে দরকার দাম ও আমি কালকে তোমার সব ছবি পাঠিয়ে দিয়েছি দিয়ে ডিলিট করে দিয়েছি হ্যাঁ, আমি সব এও করে নিয়েছি, ডাউনলোড করে নিয়েছি। বাহ, খুব সুন্দর একটা আশ্রম। नेपाली दाना और वही इंडोनेशिया जावा सुमात्रा का जैसे आज मुझे বাহ, হ্যাঁ পাখিটা কয় भोजन करना है
তার সাথে বাসির স্যুট, খুব সুন্দর লাগছে বাসির স্যুটটা। ভালো লাগছে। ভিডিওটা আমাকে দেবে, স্টপ করেছো? না, এবার আমাকে দাও, আমি খাচ্ছি। হ্যাঁ ভালো খেতে। কি আছে কি কম বুঝতে সবাই চলো 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 গাড়িতে গাড়িতে अरे खेने हाथ तो धोइए आप लोग तो बच्चे खावा দেখাও না এখানে খেয়ে নিল। खेने खेने ताদের খেনে হাত তো ধুয়ে নিয়ে চল করতে পারবি তো খেতে খেতে করতে বললো কেন? রামঝুলা আছে। এগুলো কত টাকা করে দাম বলো তো? কত করে 100 টাকা। এখানে? ভাই কত টাকা দিয়ে কিনেছো এটা? কি জানি। 100 रुपीस তো দাম করলো। চা দিয়ে দাও। আমার ম্যাগনেট কালেকশন করতে খুব ভালো লাগে। যেখানেই যাই মোটামুটি ম্যাগনেট এরকম কালেকশন করি। এখানে গিয়েও অনেক ম্যাগনেট এখান থেকে কিনেছিলাম। বলছি ওই লোকটা বললো ঘুরিয়ে দেবো, তাহলে ঘোরালো না কেন? আমার অন্য একটা লোক পাঠিয়ে দেবে তাকে আর দেখতে পাওয়া যাবে। গঙ্গা আমার মানব টুপি কিনবে নাকি? গঙ্গায় আমার মা। মহাদেব লেখাগুলো দেখেছো? সেই এতে উত্তরপ্রদেশে এরকম পড়ে। এটা রামঝুলা। এই ঝুলাটাতে হেঁটে পুরোটা ওই দিক দিয়ে হেঁটে এখানে 3টে ঝুলা আছে, রাম ঝুলা, লক্ষ্মণ ঝুলা আর জানকী ঝুলা। এখানে লক্ষ্মণ ঝুলাটাতে কাজ হচ্ছিল বলে বন্ধ ছিল। আমরা রাম ঝুলার দিকে না থাকলে ওর কাজ করে চলে যাবে। আমরা এখান থেকে একটা গাইড নিয়ে নিয়েছিলাম যে প্রত্যেকটা জায়গার হিস্ট্রি বলছিলেন, আর আমি প্রত্যেকটাই কথাই ভালোভাবে তুলে ধরেছি। যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। এই দাঁড়াও না একটুখানি। अरे गाइड जाते तो सब लोग आ गए। हाँ आ गया और क्या है? झूले पे बांदर होता है, तो झूले पे बांदर होता है बंदर, तो अपना सामान वामान सही रखना, ठीक है ना। वो छीन लेते हैं, खाने पीने का कोई सामान होता है तो छीन लेते हैं, ठीक है ना। ये है राम झूला, ठीक है ना। इसको पार करेंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। ये चलने के लिए ब्रिज है, यहाँ रुकते नहीं है, ठीक है ना। तो आ जाओ। फोन हाथ से भी नीचे लिया तो भैया মাথাটা নামাও মাথাটা নামাও फोन हाथ से भी चिंता है ना। फोन रखो बाकी को खाने पीने का বললো ফোনটা থাকুক, বাদ বাকি খাবার জিনিস যা আছে। কোথায় যাচ্ছি বলতো আমরা? কি বলতো?
রাম ঝুলা। যাও বলে রাজ্য যাও যাও বলে ये लो देखो ना যাও বলে কাঁপছে তো, কাঁপছে, কাঁপছে। আমি পারবো না, ভয় লাগছে আমার। উঁচুতে একটু ভয় আছে। আমার ছেলেটাকে এ থেকে নামাতে হবে, ঘাট থেকে। ছেলেটাকে ঘাট থেকে নামাতে ফোনে তুলে নাও, ছেলেটাকে ফোনে তুলে নাও। ভয় পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে। এটাকে পেরোই। খুব সুন্দর লাগছে চারিদিকটা, কিন্তু আমার ভয় লাগছে, কাঁপছে এটা, এটা কাঁপছে। আমি খাবো। थोड़े नहीं जाओ ওইদিকে আর একটা ঝুলা দেখা যাচ্ছে, ওরা জানে কি ঝুলা। এখান থেকে হেঁটে হেঁটে, পুরো হেঁটে হেঁটে ওইদিকে আরেকটা ঝুলাতে যাবো। দাদা কোথায় গেল? দাদা আগে ফালতু এটা লোকের পিঠ होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। अभी क्या है, लक्ष्मण झूला बंद है ना, अभी वहाँ पे नया झूला बन रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसको बंद कर देंगे 2-3 महीने के लिए। इसका मतलब वो होगा, रेनोवेशन होगा। बाकी ये बनाया यूपी गवर्नमेंट ने, ये पहले स्टेट उत्तर प्रदेश था मालूम है, ये अलग राज्य बना, उत्तराखंड राज्य बना, तो यूपी गवर्नमेंट ने इसको बनाया 1985 में। आपने डिवाइन लाइफ सोसाइटी का नाम सुना है? स्वामी शिव, हाँ यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया। উত্তরাখণ্ড আগে উত্তরপ্রদেশের মধ্যে ছিল। আচ্ছা, সেই উত্তরপ্রদেশ গভর্নমেন্ট এটাকে বানিয়েছে 1995 সালে, 95 তারপরে এবার এটা লক্ষ্মণ ঝুলা এখন তৈরি হচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যে ওটাও রেডি হয়ে গেলে এটাকে এবার বন্ধ করে দেবে, দিয়ে এটাকে আবার রিনোভেট করা শুরু করবে। लक्ष्मण झूला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था 1930 1930 लक्ष्मण झूला, हाँ बहुत पुराना है लक्ष्मण झूला। ভাইরা এসছে, ভাইরা এলো। জানি সবাই চলে চলেই যাবে, ওরা উড়ে উড়ে চলে যাবে। ফোন দাও, ফোন পকেটে ঢুকিয়ে রেখে দিই। কি বলছো শোন, জুতো পরে নয়, জুতো পরে নয়, ওইটি না শোন রে, নাহলে আর বলবো না। আগে আগে। दादा सुनो, वो 2 लोग हैं ना, टोपी लगा रखे हैं। नहीं नहीं, वो लोग नहीं है। তাড়াতাড়ি আয়, কিছু বলছে শোন। যারা আছে তারা এসে পৌঁছাবে না। चलो सुनो, आप लोग आएंगे तो बुला लेना। देखो जैसे आप लोग दादा यहाँ पे खड़े हैं ना, इस जगह को बोलते हैं स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम देखो ऊपर में लिखा है। स्वर्ग आश्रम क्यों बोलते हैं दादा? आप लोगों ने महाभारत देखा है टीवी में, जो 5 पांडव थे ना, वो लास्ट में स्वर्ग गए थे।
5 पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा किया था, तो पांचों पांडवों ने अपनी यात्रा यहीं से शुरू किया था। उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था, नाइट स्टे पॉइंट है अंदर में तो बना है देखने का 5 पांडवों का। और यहाँ पे बाबा जी रहते थे, काली कमली वाला बाबा, नाम सुना है? बाबा काली कमली वाला संत थे। वो बचपन में ही पूरा 4 धाम कर लिए थे, लेकिन जब तक ये जीवित रहे ये काला कम्बल ओढ़ के रहते थे, जिनका नाम पड़ गया बाबा काली कमली वाला। ये बिरला के गुरु महाराज थे, बिरला जी के। तो जब बाबा ने समाधि लिया तो बिरला जी ने उसको ट्रस्ट बना दिया। इस जगह को बोलते हैं स्वर्ग आश्रम, और ये बिरला का ट्रस्ट है। और एक मंदिर है साउथ में, रामेश्वरम, नाम सुना है? तमिलनाडु, तमिलनाडु रामेश्वरम। देखो ऊपर में लिखा है प्राचीन रामेश्वरम मंदिर। बोलते हैं 5 पांडवों ने यहाँ पूजा करके स्वर्ग गए थे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे जाओ, चप्पल जूता निकाल के अंदर में दर्शन करो, फिर वहाँ पे पूरी जानकारी आपको बताऊँगा, ठीक है ना। चप्पल जूता साइड में निकाल के जाके दर्शन करो। এইখানে বিশ্রাম করেছিল, এখানে বিশ্রাম করে এখানে পুজো করে চলে এসো এই দিক দিয়ে, এই দিক দিয়ে। এসে এখানে জুতো খুলবো। দাদা তাড়াতাড়ি আসুন। গল্প শুনবে। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি করবে। आ गया सभी लोग, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं। देखो दादा, फर्स्ट रामेश्वरम साउथ में है, तमिलनाडु में है। ये जो है शिवलिंग है, ये 5 पांडवों ने पूजा किया था, तो अंदर में शिवलिंग है। दादा शालिग्राम मालूम है? शालिग्राम शिला मालूम है? हाँ शालिग्राम शिवलिंग है, ये शालिग्राम शिवलिंग है। जाके दर्शन कर लो अंदर में, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। जाओ पहले दर्शन करो। আগে দর্শন করবো তারপর বলবেন। हाँ फिर बोल दो। ঠিক আছে। फिर बताओ तो फिर नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। देखो जैसे आप लोग आ रखे हैं ना, इस जगह का क्या नाम है? ऋषिकेश। आप लोग ऋषिकेश में आ रखे हो। ये जो जगह है ये हिमालय का स्टार्टिंग पॉइंट है, हिमालय का प्रवेश द्वार। तो इसका नाम है देवभूमि तपोभूमि। ऋषिकेश क्यों बोलते हैं? तो जैसे इस जगह पे आप लोगों को मालूम होगा, जो पहले के समय में हमारे जो ऋषि मुनि साधु महात्मा होते थे, वो लोग इधर में तपस्या करने आते थे। जो जंगलों में पहाड़ों में तप करते थे, साधना करते थे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। जो उनकी बॉडी होती थी ना, वो धीरे 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 पूरी बॉडी गल जाती थी, पूरी बॉडी का कंकाल बन जाता था। 2 चीज़ बचता था। साधुओं की जटा होती है ना, जटा मीन्स केस, केस और हड्डी, ये पूरा मांस गल जाता था। वो लोग ब्रह्मलीन हो जाते थे। वो 2 चीज़ बचता था, केस और हड्डी। उसी को मिला के जगह का नाम पड़ा ऋषि केस, यानी ऋषियों का केस। यहीं से हिमालय यात्रा होता है, जिसको बोलते हैं 4 धाम यात्रा। नाम सुना है आप लोगों? अभी आप लोग को जाना होगा ना, तो ऋषिकेश से जाना होता है। फर्स्ट होता है यमुनोत्री, सेकेंड होता है गंगोत्री, थर्ड होता है केदारनाथ, सबसे लास्ट में जाते हैं तो बद्रीनाथ आता है। बद्रीनाथ से आगे जाएंगे हमारा भारत खत्म हो जाता है,
तिब्बत लग जाता है, चाइना बॉर्डर है। ऋषिकेश में 3 पहाड़ हैं, इसको बोलते हैं शिवालिक, ये हिमालय का माउंटेन है। इधर में है ब्रह्मकुट, इधर में है शिवकुट, इधर में है मणिकुट। इसके पीछे एक मंदिर आता है, नाम सुना है? नीलकंठ। शिव भगवान ने विष पिया था ना, उनका कंठ नीला हो गया था, उनको क्या बोलते हैं? नीलकंठ महादेव। यहाँ से गाड़ी से लोग जाते हैं, 25 किलोमीटर है, गाड़ी से भी लोग जाते हैं और पैदल भी जाते हैं। कभी सावन में आओगे ना तो काफ़ी भीड़ होती है उधर, ठीक है ना। अभी आपने जो अंदर में शिवलिंग देखा, शालिग्राम शिवलिंग है, इसको रामेश्वरम बोलते हैं। पहला रामेश्वरम साउथ में है, तमिलनाडु में। महाभारत देखा आप लोगों ने, तो 5 पांडव थे ना, उन्होंने युद्ध किया था, कौरव और पांडव। जो दोनों के गुरु थे उनका नाम था द्रोणाचार्य। हमारे सनातन धर्म में क्या बोलते हैं? गुरु हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, इसको बोलते हैं महापाप, ठीक है ना। तो 5 पांडवों ने जो युद्ध किया, तो गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हुई और 5 पांडवों ने अपने रिलेटिव लोगों को मारा था, ठीक है ना। उन्हें पाप लगा था। जब वो युद्ध जीत के अपने राज्य में गए, उन्होंने भगवान से पूछा था कि इस पाप से हम लोग को मुक्ति कौन दिलाएगा। उनको उन्होंने बताया था कि आप लोग हिमालय में जाओ और शिव भगवान का तपस्या करो, जब शिव भगवान दर्शन देंगे तो आप लोग को मुक्ति मिलेगी। तो 5 पांडव हिमालय आए थे। 5 पांडवों ने जगह पे नाइट स्टे किया था, विश्राम किया था। इस जगह का नाम पड़ा स्वर्ग आश्रम। और 5 पांडव यहाँ से जब जाने लगे तो 5 पांडवों ने मिलकर शिव की पूजा करी। जो अंदर में शिवलिंग आपने दर्शन किया, ये प्राचीन शिवलिंग है, ठीक है ना। और पूजा करके वो लोग यहाँ से बाई वॉक हिमालय गए। आप लोग कभी 4 धाम किए हैं? कभी आप लोग जाएंगे ना तो ऋषिकेश से और बद्रीनाथ तक रास्ते में आता है पंचप्रयाग, नाम सुना है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग। सबसे ऊपर में जाएंगे टॉप में तो आएगा विष्णुप्रयाग। वहाँ पे धौली गंगा अलकनंदा का संगम होता है। तो 5 पांडवों ने वहाँ तपस्या किया था। उस जगह का नाम है पांडुकेश्वर। जब उनकी तपस्या पूरी हो गई तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया, लेकिन अपने असली रूप में दर्शन नहीं दिया। भगवान ने क्या किया? नंदी का रूप बना लिया। नंदी समझते हैं ना? तो गाय का बछड़ा होता है ना, तो नंदी के रूप में आए। तो 5 पांडवों ने उनको देखकर पहचान नहीं पाए। तो 5 पांडवों को कंफ्यूजन हो गया कि ये शिव है कि नंदी है, क्या है। तो 5 पांडव जो सबसे बलवान थे वो भीम थे। तो भीम ने क्या किया? जो भगवान नंदी के रूप में आए थे उनको बैक साइड से पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो महादेव थे, तो शिव भगवान थे। वो अपने सर को क्या किए? जमीन के अंदर लेके चले गए और उनका अंदर अंदर सर जाके निकला काठमांडू नेपाल, जिसको बोलते हैं पशुपतिनाथ, ठीक है ना। वहाँ पे सर की पूजा होती है। जो उनका पीछे का भाग था ना, कमर के नीचे का, वो उधर रह गया, उसी को बोलते हैं केदारनाथ। तो कभी आप लोग केदारनाथ जाएंगे ना, वहाँ पे ऐसा शिवलिंग नहीं होता है, वहाँ पे उनकी पीठ की पूजा होती है। असर का पूजा होता है पशुपतिनाथ में, ठीक है ना। फिर वहाँ पे महादेव ने उनको दर्शन दिया, बोला पांडव आप लोग को मुक्ति मिल गई, अब स्वर्ग जाओ। तो 5 पांडव वहाँ से स्वर्ग जाने लगे। रास्ते में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, जो उनके 4 भाई थे ना, एक एक करके बर्फ में गल गए। वो लोग स्वर्ग नहीं जा पाए। लेकिन जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनको धर्मराज कहा गया था, कभी झूठ नहीं बोलते थे। एक बार बोला था, अश्वत्थामा मारा गया, हाथी का नाम था, ठीक है ना, अश्वत्थामा हाथी का नाम था। हाँ, तो उनको पाप लगा था, उनका पैर का अंगूठा गल गया था। और साथ में थे ब्लैक डॉग, भैरव, काले कुत्ते के रूप में। तो वही लास्ट में दोनों लोग स्वर्ग गए थे। तो इस जगह से 5 पांडवों ने अपनी यात्रा शुरू किया था। तो इस जगह का नाम है स्वर्ग आश्रम, यानी स्वर्ग का मार्ग है, ठीक है ना। समझ गए आप लोग? अब हम लोग चलेंगे यहाँ से गीता भवन। गीता प्रेस गोरखपुर, नाम सुना है? तो यहाँ पे गीता भवन है। यहाँ पे कॉपी टेम्पल है बद्रीनाथ का। एक पेज में पूरी गीता है, एकटा पेज में शिव भगवान का फैमिली दर्शन है, रुद्राज का गाछ है देखने का, ठीक है ना। समझ गया? রামসেতু থেকে গল্প শুনতে শুনতে এগোচ্ছি পুরোটা গিয়ে জানকী সেতুতে উঠবো। সবাই ঠিকঠাক এসেছে। গল্প শোনার লোভে। आगे सभी लोग दादा सबको बोल दो ना कि अंदर ही अंदर चलने का है। लास्ट में झूला आएगा, जानकी झूला, ठीक है ना। इधर में गीता भवन देखेंगे, आगे बर्फ का शिवलिंग देखेंगे, रुद्राक्षों का दर्शन करेंगे, फिर झूला आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर कोई नहीं रहेगा, सब लोग अंदर चलेंगे, ठीक है। आ जाओ।
बताओगे कुछ सुनने की इच्छा है कि बताऊं कि रहने दो? सुनना है तो साथ में रहो, नहीं सुनना है तो मैं नहीं बताऊंगा, दिखा तो बस छोड़ दूंगा, ठीक है? ओ बेटा साइलेंट। देखो आप लोग गीता भवन में आ रखे हो, ठीक है ना? गीता प्रेस गोरखपुर जो है ना, मेन यूपी में है, गोरखपुर में है। इसको बोलते हैं गीता भवन। इसके पूरे दीवालों पे भगवत गीता लिखा है चारों तरफ, ठीक है ना? देखो दीवालों पे लिखा है, डाउन साइड, नीचे में, ऊपर में। और यहाँ पे जो रूम बना है ना, जैसे कभी आप लोग इधर में आते हो, इधर में रहने का इच्छा होता है तो हफ्ता दिन 10 दिन महीनों तक रहते हैं इधर में रूम मिलता है, कोई पैसा नहीं लगता है, इधर में फ्री होता है। जाते समय जो इच्छा से दान डोनेशन करना होता है, लोग दान डोनेशन करते हैं इधर में आकर। इधर में बर्तन चूल्हा सिलेंडर भी मिलता है, बना के खाना है बना के खाओ, नहीं तो मेस में खाते हैं तो 50 रुपये का पर्ची कटता है, भरपेट भोजन मिलता है। सुबह शाम आरती होती है, सत्संग होता है, भगवत होता है। तो यहाँ लोग आके महीनों रहते हैं, जो भक्ति भावना करने वाले लोग होते हैं उधर में आके रहते हैं। इसको बोलते हैं गीता भवन, ठीक है ना? इसके अंदर में मंदिर है देखने का, क्या है इधर में सामने है लौकी नारायण मंदिर, ठीक है ना? लक्ष्मी नारायण जो बद्रीनाथ में जाते हैं ना, पूजा होती है लक्ष्मी नारायण की, तो मंदिर का दर्शन करेंगे। राइट साइड में जाएंगे ना, उधर के साइड में तो शिव भगवान का पूरा परिवार है, शिव फैमिली, शिव पार्वती गणेश कार्तिक। और एकटा पेज में गीता है। गीता में दादा मालूम है कितना अध्याय होता है, कितना चैप्टर होता है? 18 अध्याय होता है। वो पूरी गीता 1 पेज में है। तो चप्पल जूता निकाल के आप लोग जाओ, दर्शन करके आ जाओ, फिर मैं रुद्राक्ष का गांछ दिखाऊंगा, ठीक है? जाओ, इधर में चप्पल जूता साइड में निकाल दो। সব জীবনের সব কিছু দেওয়া আছে। पहले बुलाओ, मैं समझा रहा हूँ। दादा कुछ इंटरेस्टेड है आप लोग? नहीं है तो बताओ, नहीं तो ऐसा नहीं है, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं है, ठीक है? हम लोग सामने जो गांच है दिख रहा है, ये रुद्राक्षु गांच है, ये वाला जो गार्डन है ना, ये दिख रहा है ना सामने। तो रुद्राक्षु के बारे में बताओ कि रहने दूं? बताइए। सुनेंगे? देखो रुद्राक्षु जो होता है वो शिव का होता है, मालूम है? शिव भगवान का 2 मैरिज है, मालूम है? 2 शादी है, सती पार्वती। पहली पत्नी जल गई थी ना आग में, हवन कुंड में, तो शिव भगवान ने उनकी लाश को अपने कंधे पे उठाकर पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया था। तो शिव भगवान ने उस समय तांडव किया था, शिव तांडव। तो भगवान का ये तीसरा नेत्र जो है ना, थर्ड आई, वो ओपन हो गया था, उसमें से आंसू निकले थे। जहाँ जहाँ पे उनका आंसू गिरा, रुद्राक्ष होता है। रुद्राक्ष होता है दादा नेपाल में, एक देश है इंडोनेशिया, वहाँ भी रुद्राक्ष होता है। लेकिन जो सबसे छोटा होता है ना, काली मिर्च जैसा, वो होता है हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ। जितना ऊपर जाते हैं ना, पहाड़ों में बर्फ़ गिरता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे छोटा होता है। जितना छोटा रुद्राक्ष होता है वो सबसे अच्छा होता है, और उसमें पावर ज़्यादा होती है। एक मुखी समझते हैं ना, 1 फेस, एक मुखी से लेके 14 मुखी तक होता है। लेकिन जो सबसे दुर्लभ होता है एक मुखी भगवान शिव का मानते हैं, मालूम है? वो मिलता नहीं है।
12 साल में पूरे गांच पे एक ही फल आता है जो भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं। बाकी जो 2 से 14 मुखी होता है हर साल गांच पे आता है। रुद्राक्ष कैसे मालूम पड़ेगा असल है कि नकल है? मालूम है असल नकल के बारे में? देखो रुद्राक्ष जब गांच पे आता है तो इसके ऊपर में कुसा होता है, कुसा हटाएंगे रुद्राक्ष निकलता है। रुद्राक्ष में ऐसा लाइन होता है, देखा है? लाइन जितना होता है ना उसी को मुखी बोलते हैं, मुखी यानी कि फेस। दूसरा पहचान है, उसको तोड़ेंगे या उसका एक्सरे करते हैं ना, अंदर में बीज होता है। ये फल होता है ना, तो फल में क्या होता है? बीज होता है। तीसरा पहचान होता है ना, ये इसका जो कलर होता है ना ब्राउन होता है। इससे आप देखोगे ना रोड पे बेचते हैं ना मार्केट में, येलो कलर रेड कलर करके बेचते हैं। वो क्या होता है? वो नकली रुद्राक्ष होता है। जिससे आप उसको गले में पहनते हैं ना, वो कपड़े में कलर लग जाता है। तो जो रियल रुद्राक्ष होता है वो ब्राउन कलर का होता है। जैसे आप उसको पहनना स्टार्ट करते हो वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। रियल होता है तो काला हो जाता है। और जो हम लोग यूज़ करते हैं रुद्राक्ष वो होता है पंचमुखी, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना पंच तत्व से बना है। तो पंचमुखी अघोरी का रूप मानते हैं, जो सभी लोग पहन सकते हैं उसको। जैसे आप चिकन मटन खाते हैं तो उसमें कोई परहेज नहीं होता, इसलिए कॉमन रुद्राक्ष है पंचमुखी। रुद्राक्ष से क्या लाभ होता है? रुद्राक्ष की माला अगर आप गले में पहनते हैं ना, उसका जो दाना होता है ना वो बॉडी में हमेशा आपका टच करता है, रगड़ करता है। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। बहुत लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे अच्छा होता है पंचमुखी रुद्राक्ष। जब करते हैं ना ओम नमः शिवाय का, घर में ठाकुर मंदिर में रुद्राक्ष रखते हैं। और रुद्राक्ष को बोलते हैं अकाल मृत्युहारी। क्यों? शिव का रुद्राक्ष होता है तो शिव की ब्लेसिंग रहती है आपके ऊपर, ठीक है ना। और एक आयुर्वेद में रिसर्च है, बाबा रामदेव का नाम मालूम है आप लोग को? बाबा रामदेव अपने योग में बताते हैं ना, पतंजलि हरिद्वार में है, तो बोलते हैं ना कि तांबा घूटी हो, मिट्टी का बर्तन हो, उसमें जल भर के रात में उसको डुबा दो, सुबह सकाले भूखा पेट उसका जल खाते हैं। तो ज़्यादा एज के लोग होते हैं ना, तो जोड़ों में, कमर में, घुटनों में दर्द होता है, चलने में बैठने में। कारण क्या होता है? एज ज़्यादा होती है तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, मालूम है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसको एक नॉर्मल करता है, ये दवा का काम करता है। तो सबसे भालो होता है पंचमुखी रुद्राक्ष, ठीक है? आ जाओ। এটা তো তোমার এটা রুদ্রাক্ষ না, এটা পুরো দেয়ালে গীতা লেখা আছে। ऐसे में बंगाली मानुस बहुत आ रहे हैं। छुट्टी है क्या उधर में? पूजा का छुट्टी है। हाँ बहुत। इधर में कम से कम 15 आप लोग को मैं दिखाऊंगा। उसके बाद वो जानकी ब्रिज आ जाएगा, वहाँ से आप लोग क्रॉस करके गाड़ी पे चले जाएंगे। इधर में चलेंगे स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक पाथुर, मालूम है? स्फटिक बर्फ का पाथुर होता है, उसके बारे में मालूम है कि बताऊं? देखो आप लोग कभी जाओगे ना केदारनाथ दर्शन करने, बद्रीनाथ दर्शन करने, उधर में जैसे क्या होता है आप लोग को मालूम होगा, बर्फ गिरता है, ठीक है ना। तो उधर में हिमालय में बर्फ का पहाड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर, ठीक है ना। जो ग्लेशियर होता है ना, हवा धूप लगती है तो वो क्या होता है? पिघलता है, वही गंगा जी में पानी बन के आता है। गंगा जी का पानी इसे टच करता है ना, बिल्कुल चिल्ड होता है, ठंडा होता है। क्यों? वो बर्फ़ का ही पानी होता है। तो जो ऊपर का बर्फ़ तो गंगा जी में पिघल के पानी बन के आ गया, नीचे का जो बर्फ़ होता है ना वो नीचे जो दब जाता है, जो ज़मीन के अंदर दबा रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है? वो पत्थर बन जाता है। उसको हवा धूप नहीं लगती है तो ठोस पत्थर हो जाता है, उसको बोलते हैं स्फटिक मणि। स्फटिक का पूजा राम भगवान ने किया था। दादा आप लोग रामायण पढ़े हैं? राम भगवान ने पूजा किया था। जब राम भगवान को लंका जाना था ना, तो उनको सेतु बनाना था, राम सेतु। तो राम सेतु बनाने से पहले वो लक्ष्मण जी गए थे ना समुद्र से विनती करने के लिए कि अपना जल कम कर लो। तो समुद्र ने उनकी बात को नहीं माना, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा, वो गुस्सा करते थे। उन्होंने बोला मैं एक ही बाढ़ में समुद्र को सुखा दूंगा। तो उनके गुस्से को शांत करने के लिए राम भगवान ने स्फटिक मंगाया था हनुमान जी से, और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मिलकर पूजा किया साउथ रामेश्वरम, ठीक है ना। तो उसी स्फटिक मणि शिवलिंग है आगे में, ठीक है ना। और एक मुख्य रुद्राक्ष तो मिलेगा नहीं, ओनली दर्शन होता है। कॉर्पोरेशन जानते हैं आप लोग, गवर्नमेंट सेंटर दर्शन मिलता है, वो मिलता नहीं है, ठीक है ना।
दर्शन करेंगे। और स्फटिक और हिमालय का फेमस होता है। तो स्फटिक क्या काम करता है? आप लोग बंगाली में क्या बोलते हैं? कोथा कोथा राग करे, रुद्र सिंधु करे, गुस्सा करे, टेंशन करे। जो सर में दर्द होता है, बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनको धागे में, लाल धागे में, काले धागे में, चांदी की चैन में, सोने की चैन में पहना जाता है। दिमाग के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। रुद्राक्ष भी रियल देखने को मिलेगा। दर्शन जानकारी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग झूला पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। झूला पे मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ से अपना झूला क्रॉस करके गाड़ी वाले को कॉल कर लेना, ठीक है। আমলা আমলকি গাছ আমলকি হয়ে আছে এই ছেলে সকাল লাগবার দিকে জানাকি ঝুলা এটা জানাকি ঝুলা এটা হলো জানকী ঝুলা। রামঝুলা দিয়ে এসে আমরা জানকী ঝুলা দিয়ে ফিরেছিলাম। আর এখানেই আমাদের ঘোরাঘুরি সেদিনকার শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর আমরা বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম। আর এখানেই আমার আজকের মতো ব্লগটা শেষ হলো। জানকী ঝুলায় আমরা হাঁটছি। নদীতে প্রচুর পরিমাণে স্রোত।